Hello, everybody. We are all already aware that Adani Wilmar IPO opens today. Incorporated in 1999, Adani Wilmar, which operates under the brand name Fortune, is one of the largest fast-moving consumer goods companies in India, offering a wide range of essential kitchen commodities. And to take this ahead with us, we have with us Mr. Angshu Mallick, who is the CEO of Adani Wilmar. Welcome to the show, Mr. Mallick. Thank you. Yeah, so thank you so much for taking out time, Mr. Mallick. Let's get started. My first question to you is, we all know IPO details are all over the internet, but could you give us a quick roundup of IPO? Okay, this IPO is a primary IPO. The entire proceeds come to company for three main objectives. First is to pay off our debt, which is in our books of around roughly 1050 crores. Capex, additional new capex of 1900 crores, and then we have around 450, 500 rupees left for new acquisitions, mergers, or strategic investment. That is the three main objectives. Okay, thank you so much for that. So, I'll kind of segue into the next question, based on what you've said. Could you tell us more about your company's finances? See, I just give you an idea about what is Adani Wilmar. Adani Wilmar is the last 22 years old. It's a unique 50-50 JV. So both the owners are equal in terms of partnership. Both the promoters brings their expertise on the table and a professionally managed company. So we have a formidable brand, Fortune, which we have built over the last 20 years, a distribution setup with more than 5,500 distributors and more than 1.8 million retail outlets we cover, reaching one out of every three home. Then we have factories, which are 50 in number, 22 our own and 28 tolling units. So across the country, you have the factories. And then you have a people. And that asset is a very big asset in terms of our senior management and middle management team is mostly 10 years to 20 years with this. So a lot of stability, a lot of thought process, and we all almost think in the same manner. That is the strength of the organization. So this is what is the thing. Our revenues last year has been 37,100 crores, and the business is growing every year in terms of volume as well as value. Okay. So now the next question is, interesting, and I'm sure, a lot of investors might want to, know the answer for this. So, what I'd like to understand, can you please elaborate on, the kind of growth you are envisioning for Adani Wilmar going forward? Yeah, see, we have divided the business into three categories or verticals. First vertical is edible oils and fat. Here, we are having almost 75% of the business from packed branded edible oil, 25% coming from our institutional business that we do because we are the largest suppliers to all the biscuit factories in the country and all the frying companies who use oil for making snack foods, wafers, and all the product that you see in the market. Then we have this edible oil portfolio is growing at around 6% to 8% per annum because edible oil is a very mature category. Then comes industry essential. The industry essentials mainly is castor oil. We are the world's largest castor oil player. Then we have oleochemical business, which is actually a backward integration of palm oil business. From palm oil, we get stearin and we do fatty acid splitting. We make glycerine, we make stearic acid, and we make soap. So this is our another big business. And the third business is the crushing business. That is the mustard seed crushing, soybean seed crushing, and then we export the meal or we sell in the domestic market. So all this part of the industry essential, this is growing at around 6% to 7%. And that's a steady. But the main business is now becoming is the food and FMCG, which is staples branded, wherein we have atta, sushi rava maida, dal, besan, then we have sugar, then we have atta, then we have basmati rice, non-basmati rice, and this ready-to-eat cook. ये सब जो product है, this is
growing at the rate of 25 to 30% per annum, and that is the fastest growth that is happening. So all our focus and concentration is on the food. Okay. Yeah, I mean, sounds interesting. I'll kind of want to understand one part. So pandemic has not been kind to a lot of businesses. And, we have seen that over past, couple of waves and, where we stand in the pandemic. So how has Adani Wilmar adapted to, say, a fractured supply chain and other problems arising due to the pandemic? See, we are in essential staples, जो हमारे घर में रोज हम लोग खाते हैं. तो अभी आप देख लीजिए, चाहे वो मिडिल इनकम हो, अपर मिडिल इनकम हो, रूरल हो, अर्बन हो, हम रोज हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए दाल, हमें चाहिए चावल, हमें चाहिए चीनी, हमें चाहिए तेल बनाने के लिए. अब पैंडेमिक हो या नहीं हो, सही माने में हर घर में ये नहीं होगा तो आपका खाना नहीं मिलेगा. तो हम लोग सब खाए जरूर है. पैंडेमिक में शायद घर के अंदर बैठ के लोगों ने ज्यादा खाना खाया. तो हमारे ये सब बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है. जो इम्पैक्ट हुआ है वो है जो हमारा होटल का बिजनेस है, कैटरर का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, जहाँ पे अदानी विलमार जो है, फॉर्चून ब्रांड, हमारा कई शादी में हमारे बहुत क्वांटिटी तेल जाता है, बासमती राइस जाते हैं, बेसन है, दाल है. ये सब जो बड़े बड़े शादी होते थे उसके जो सप्लाई करते थे, उनमें जरूर एक इम्पैक्ट आया है. लेकिन घर के अंदर कंजम्पशन थोड़ा बढ़ गया है, बाहर कंजम्पशन घट गया. Okay, so Mr. Mallick, my next question to you is, based on your capital expansion. So, we understand that the IPO proceeds will largely be deployed for capital expansion. Could you please elaborate on that? See, 1900 rupees we have kept for capex, on which we have outlined 11 projects. Already हम लोग ने projects पूरा outline किया. Now, edible oil में by and large हमारे पास आज के दिन में we have enough capacity. आज 25% country का refining capacity हमारे पास है, packing capacity है. तो हमारे पास capacity of oil की कमी नहीं. लेकिन कुछ प्रांत में अभी consumption बढ़ रहा है, वो है ईस्ट, यानी पर्टिकुलरली बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट. तो यहाँ पे जो हमारा फैक्ट्री है हल्दिया में, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% तक पहुंच गया है. तो जाहिर है कि आपको आगे सोचना है तो नया कैपेसिटी डालना है. बाकी आप देखे होंगे कि इंडिया में फार्मर्स को बड़ा प्रोत्साहित किया जा रहा है टू ग्रो मोर मस्टर्ड सीड, ऑयल सीड के, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा होता है. तो गवर्नमेंट इज पुशिंग. तो इस साल मस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन कम से कम 25 से 30% बढ़ेगा. ना मस्टर्ड सीड जब बढ़ेगा, जाहिर है कि आपको इसको क्रश करने का साधन होना चाहिए या कैपेसिटी. तो हम लोग 2 बड़े यूनिट लगाएंगे, 500 टन ईच, एक हरियाणा में और एक राजस्थान में, जो आपको 1000 टन पर डे क्रशिंग करेगा मस्टर्ड सीड. क्योंकि फॉर्चून कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल देश का नंबर 1 सरसों तेल है. अब इसके बाद पूरा पैसा जाएगा आपका इंटीग्रेटेड फूड फैक्ट्री, जिसके अंदर मेन है राइस, दाल यूनिट है, 3 दाल यूनिट्स है, जिसके साथ दाल और बेसन यूनिट हम लोग मर्ज कर देंगे ताकि एंड टू एंड हो, चना से सीधा बेसन मिले, एकदम एंड टू एंड. ये करेंगे. सोया वड़ी जो है, सोया नगेट्स, इसमें काफी डिमांड आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड में डॉक्टर ने भी कहा है कि प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ाओ. और प्रोटीन यानी वेजिटेरियन के लिए तो सोया ही अच्छा, सबसे अच्छा प्रोटीन है, 52%. तो प्रोटीन के लिए हमारा डिमांड है, तो हम लोग उसमें एक एडिशनल कैपेसिटी देंगे. और आटा के लिए हम लोग करते हैं, आटा मैदा, उसके लिए भी कैपेसिटी बढ़ा है. तो मेनली सब फूड के लिए. Okay. That was an elaborate answer, Mr. Mallick. अभी थोड़ा सा, मैं, what I'm trying to understand is from the competition perspective. The competition is betting big on branded value-added food products. So, is this an area Adani Wilmar is also looking at for next phase of his journey? देखिए, हर आप देखेंगे युग यानी जनरेशन से कुछ चीज धीरे धीरे चेंज होता है. हालांकि हम लोग सब दाल, चावल, रोटी तो खाना चाहते हैं रोज,
वीक में एक दिन चाइनीज ले लेंगे चल जाएगा, लेकिन रोज आकर आप मुझे आप कहेंगे कि आप रोज नूडल्स खा सकते हैं, तो शायद मैं ना करूँ। करेक्ट, ये घर में भी है, हर घर में। तो वैरायटी तो सबको चाहिए, लेकिन जो बेस है ना, वो बेस तो स्ट्रांग है हर घर में, कि दाल चावल रोटी आटा चीनी ये सब चाहिए। अब जो प्रोसेस फूड्स है, इसका आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा, लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, चला। हम लोगों ने अभी खिचड़ी इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो हर घर में खिचड़ी बनता है, लेकिन हमारा जो खिचड़ी है, जैसा कलकत्ता का भोग खिचड़ी, ये गोविंद भोग चावल है। अभी आप गुजरात में है या बॉम्बे में है, आपको कहाँ मिलेगा गोविंद भोग चावल? और आप कौन सा 100-200 ग्राम से आपका काम होगा, तो आप लेंगे नहीं। आपको मूंग दाल चाहिए, जो बंगाल में जो देसी मूंग है वही चाहिए, तो हमने वही चीज लाके आपको दिया है। अब आप प्रांत में किधर भी बैठिए, मैं आपको बंगाली भोग खिचड़ी दूंगा, एकदम ऑथेंटिक, डिजाइंड एंड मेड बाय बंगाली फूड स्पेशलिस्ट। वैसे हमने पंजाबी खिचड़ी किया, गुजराती किया, अभी अचारी खिचड़ी लाया। काफी लोगों ने कहा कि हमको अचार चाहिए खिचड़ी के साथ, क्यों ना आप अचार ही डाल देते, तो हमने अचारी फ्लेवर वाला बनाया। अब बच्चे लोग जो है खिचड़ी के नाम से पूरा कतराते थे, तो उनके मदर काफी इंटरव्यूज में बताया कि आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग का, तो इंटरेस्टिंग में आई विल टेल यू, हमने अभी नया लाया मैक्सिकन सालसा खिचड़ी। इसमें टोमेटो ज्यादा है, इसमें टेस्ट अलग है, बच्चे लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये खिचड़ी है। पाव भाजी खिचड़ी लाया हूँ। अब खिचड़ी में देखिए, सब दाल है तो प्रोटीन है, चावल है तो कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अंदर एडिबल ऑयल है या घी है। तो आपका बैलेंस डाइट अगर कोई देखा जाए, अगर एक कटोरी कोई खिचड़ी खाए तो उसको बैलेंस डाइट मिलता है, कंप्लीट होल फूड जिसे कहते हैं। तो वी वांट टू पुश इट, तो हमने ये अभी स्टार्ट किया है। इस तरह से वी आर ब्रिंगिंग और बिरयानी के अलावा दलिया मिक्स है, दलिया मसाला दलिया है, ये सब एक एक करके प्रोडक्ट्स आए। लेकिन ये सब जो प्रोडक्ट्स है, ये इसका वॉल्यूम बहुत नहीं है, इसका वॉल्यूम छोटा है और मार्जिन ज्यादा है। बट ये छोटे वॉल्यूम हमारे बड़े वॉल्यूम प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आसान कर देगा। ये हमारा एक प्लान है कि आटा जिस दुकान में जाता है, उसी दुकान में एक खिचड़ी मिक्स में बिकता है, वही ग्रोसर तो बेचता ही है, तो हमको आसान होगा। Okay, okay. Finally, I have a last question and I want to, pick your brains there. I mean, you know that you are coming to the market at a time when, FMCG sector leaders are admitting that there are a lot of inflationary pressures and, rural demand is also plateauing and, it's affecting the volume growth. If you talk about analysts as well, they are also not too hopeful about the festive demand surge. How hopeful are you that investors will look beyond these current threats and evaluate your company as a business? देखिए, इंफ्लेशनरी प्रेशर रहा है एंड हर प्रोडक्ट्स में रहा है, मेटल्स में भी रहा है, फूड में भी रहा है, पेट्रोलियम डीजल एक। आप देखेंगे कि स्टेपल्स में बाकी सब प्रोडक्ट हैज बीन वेरी स्टेबल, चाहे चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, ये सब प्रोडक्ट्स में कोई ज्यादा इशू नहीं है प्राइसिंग। सिर्फ तेल में हुआ है। तेल में भी देखिए लास्ट 3-4 साल लेकिन स्टेडी रहा। तेल का भाव एक्चुअली कम था। अगर आप इसको लास्ट 20 साल के एवरेज में देखेंगे, तो आप देखेंगे तेल हैज नॉट ग्रोन टू दैट लेवल। ये इस साल डबल हो गया, क्योंकि सब जगह में क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्रोडक्शन कम रहा, लोगों का डिमांड अच्छा रहा, तो रेट में गवर्नमेंट इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी नीचे किया। अब प्राइस वापस 15-20% नीचे आके अब कंज्यूमर्स के लिए बाय एंड लार्ज स्टेडी है ना। इन्फ्लेशनरी में क्या होता है कि तेल में या स्टेपल्स में कंज्यूमर, क्योंकि ब्रांड फॉर्च्यून इतना स्ट्रांग है कि अगर आप ₹2 लीटर बढ़ा देते या ₹5 लीटर बढ़ा देते, कस्टमर चले नहीं जाता है, कस्टमर उसी में ही रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि द मार्केट प्राइस आर गॉन अप एंड सभी तेल का बाजार भाव बढ़ा है, बट आई विल नॉट चेंज माय ब्रांड। एंड हमने ये देखा है, ये सो इन्फ्लेशन में वी कुड पास ऑन द बेनिफिट ऑफ मार्केट प्राइसेस। और अब जब ड्यूटी घटा, हमने उतना उसको प्रोपोर्शनेटली नीचे भी किया है, ताकि उनको जो ब्रांड, हमारे जो लॉयल ब्रांड कस्टमर्स है, उनको दिक्कत। तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर्स एक्सेप्ट increasing prices and passing on the higher price. अब रह गया रूरल मार्केट। कंपनी में, अदानी विल्मार में 35% सेल्स रूरल से आता है और 65% अर्बन से आता है। जब हम रूरल कहते हैं, 1 लाख और बिलो टाउन को हम रूरल डिफाइन करते हैं। अब
स्टेपल्स में ये है 25 से 30%, डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है। आटा है तो 25%, चावल है तो, बेसन है तो 40%, तो अलग प्रोडक्ट का अलग है। इवन नगेट भी हमारा रूरल में ब्रांडेड नगेट्स बिकता है, सोया बड़ी जिसे कहते हैं। तो रूरल का जो डिमांड है वो रहा। अब ये फैक्ट है कि रूरल का डिमांड थोड़ा कम हुआ है। उनका कारण है कि उनपे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर था एक, दूसरा उनका इनकम सोर्स कम हुआ है। एंड उनका इनकम देखिए दो होता है, एक फार्म से होता है, यानी खेती बाड़ी से होता है, चाहे वो काम करे खेत पे या उगाए किसी तरह से, फार्म इनकम जिसे कहते हैं वो होता है। और एक होता है रेमिटेंस, यानी शहर से पैसा आता है, क्योंकि घर से कोई एक आदमी काम करता है, नौकरी करता है बाहर, तो वो 5-10 हजार रुपए अपने घर भेजता है एंड उसी से उनका चलता है। अच्छा, तो वो जो था वो इम्पैक्ट हुआ है, एंड उसके कारण रूरल का जो पैसा हाथ में होता है वो कम हुआ है। उसके कारण उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला दूसरे प्रोडक्ट्स में। लेकिन अदानी विल्मर का वो अच्छा है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है इसमें कोई वो चॉइस नहीं है, आपको आटा तो रोज खाना ही है, आपको आटा चाहिए। और आप ब्रांडेड आटा और नॉन ब्रांडेड आटा में 2 रुपए का फर्क है, 3 रुपए का फर्क है। 10 किलो लेता है तो 25-30 रुपए में कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है, तो आदमी जो है फिर भी कंज्यूम करता है। तो हमारा स्टेपल्स के बिजनेस में आज भी हम 25 से 30% जब ग्रो कर रहे हैं, इसमें रूरल का भी योगदान। Okay. I mean, thank you so much, Mr. Malik. Those were elaborate answers. This was it from our end, and we wish you very, very, very best for your upcoming IPO from the entire Upstox team. Thank you so much. It was a pleasure having you on the show. Thank you. Thank you. Brokerage shall not exceed SEBI specified limit. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.